Hello, students. Collision lecture number 3. In lecture number 1, we discuss the elastic collision theory. In lecture 2, we discuss elastic collision MCQ. Now, lecture 3 inelastic collision theory plus MCQ. Chalo, so first of all, we discuss what is the meaning by elastic collision. Chalo, what is the meaning by inelastic collision? So before we discuss what is the meaning by elastic collision, in the case of elastic students, momentum is conserved, initial momentum equal to final momentum, and kinetic energy is also conserved. But in the case of inelastic students, again students, external force always zero. In the case of collision, external force is always zero. If external force is zero, again momentum again conserved, means initial momentum equal to final. Initial matlab before the collision, final matlab after collision. Now here it is a inelastic collision, so kinetic energy is not conserved. Kinetic energy is not conserved, means यहाँ पे kinetic energy loss होगा. Kinetic energy is not conserved. If kinetic energy is conserved, then elastic collision. If kinetic energy is not conserved, then it is known as inelastic collision. Here initial and final kinetic energy not same, and for the inelastic collision, coefficient of restitution E is between 0 to 1. Elastic collision के लिए क्या था? coefficient of restitution 1. For the elastic collision E 1 था, यहाँ पे 0 to 1. और remember it, what is the formula for the E? चलो ठीक है. Chalo, this is the inelastic collision. Now students, we discuss one important formula that for the inelastic collision. चलो वो क्या है? For the inelastic collision, inelastic head-on collision, head-on inelastic collision, head-on inelastic collision में हमें important formula देखने वाले हैं. Head-on inelastic collision, we discuss one important formula. Head-on inelastic collision means आपको पता होगा कि before and after line of action is same. ठीक है, line of action change नहीं होता. तो before the collision, और ये जो हम शॉर्टकट स्टूडेंट्स यूज करने वाले हैं वो आइडेंटिकल मास के लिए होगा. ठीक है, चलो तो m कितनी स्पीड से जा रहा है? u1. चलो m1 उसकी स्पीड u है, और ये जो m2 है ये कहाँ पे है? रेस्ट में. दोनों के मास सेम है, m1 m2 और m. तो कब फॉर्मूला यूज होगा? जब आइडेंटिकल मास हो, इनइलास्टिक कोलिजन हो, और जब मास क्या हो? सेम, और जो सेकेंड पार्टिकल है वो रेस्ट में होना चाहिए. चलो तो आफ्टर द कोलिजन m is moving with the speed v and m is moving with the speed v2. तो v1 और v2 कैसे? v1 और v2 क्या होगा? v1 होगा 1 minus e by 2 into u. v2 होगा 1 plus e by 2. चलो तो कब ये आप फॉर्मूला यूज कर पाओगे स्टूडेंट्स? ऑलवेज रिमेंबर, इफ इट इज अ इनइलास्टिक कोलिजन, m1 m2 इक्वल्स टू m, आइडेंटिकल मास हो, सेकेंड हो वो रेस्ट में होना चाहिए. ठीक है, चलो. और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट. तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे हो सर ये कैसे आता है? चलो मैं जल्दी से आपको प्रूफ करा देता हूँ ये कैसे आया. देखो कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन. चलो कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ कर देते हैं जल्दी से. चलो तो हम स्टूडेंट्स वो जो प्रीवियस फॉर्मूला है वो हम प्रूफ करेंगे कैसे आता है. मुझे पता है आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम करेंगे स्टूडेंट्स. ऐसा हो तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो. चलो लेकिन हम प्रूफ कर देते हैं जल्दी से प्रूफ कर देते हैं. चलो क्या है? देखो ये मोमेंटम तो कंजर्व होता है, क्योंकि इलास्टिक कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम कंजर्व. तो इनिशियल में क्या होगा? मोमेंटम mu, ये तो रेस्ट में था तो 0. फाइनल में mv1 mv2 आइडेंटिकल मास है, मास कैंसिल हो जाएगा. चलो और एक इक्वेशन कहां से लोगे? यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है, वो क्या होता है? E क्या होता है? 0 to 1. क्या थी E की फॉर्मूला? v2 minus v1 अपॉन u1 minus u2. v2 minus v1, u1 क्या है? u2 0, रेस्ट में था इनिशियल में. चलो एक और इक्वेशन मिल गई. चलो सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे. चलो इक्वेशन 1 और 2, ये है हमारा 1, v1 plus v2 इक्वल टू u.
चलो क्या है सेकेंड इक्वेशन, -v1 प्लस v2 इज इक्वल टू EU। चलो वी गेट द टू इक्वेशन। चलो अभी -v1 कैंसल, ये 2v2 u प्लस EU 1 प्लस E u कॉमन और ये dy में 2 हो गया ये v2। चलो अभी v2 की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में हम प्लेस कर देंगे, सो वी गेट द v1 ऑल्सो। ओके, यहाँ पर भी आप v2 प्लेस करो या तो यहाँ पर भी आपको v1 मिल जाएगा। क्या आएगा v1 का आंसर? तो ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेकिन कब यूज करना है आपको? इनइलास्टिक कोलिजन हो तब। कब कैसे पता चलेगा इनइलास्टिक कोलिजन? आपका जो E होगा वो 0 to 1 के बीच में आएगा, ठीक है। ओके चलो, और इनइलास्टिक कोलिजन हो, आइडेंटिकल मास हो, सेकेंड पार्टिकल रेस्ट में हो, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलो अभी हम इसके PYQ करेंगे स्टूडेंट्स। देखो चलो फर्स्ट जो PYQ है हमारा वो नीट 2018 का PYQ। चलो सो नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस द PYQ। फर्स्ट है देखो ये PYQ नीट 2018, a moving block having mass m, moving block। चलो before the collision ये block m collides with another stationary block, another ये सपोज कितनी स्पीड से मूव हो रहा है u, और ये है रेस्ट में। चलो u2 0, the lighter block comes to rest after the collision। तो after the collision ये जो लाइटर ब्लॉक है वो आफ्टर द कोलिजन उसकी स्पीड क्या हो गई? 0, क्योंकि लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v। लोगों ने बोला क्या है इनिशियल वेलोसिटी को? v। चलो अभी लिख देंगे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v। और लाइटर ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन में रेस्ट में आया, लाइटर ब्लॉक इज v, देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, आपको ये सपोज इसकी स्पीड नहीं दिया, सपोज v2 ले लेंगे। चलो आपको क्या फाइंड करना है? e फाइंड करना है। चलो फाइंड क्या करना है आपको? E। चलो कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट्स? देखो कैसे पता चलेगा ये इनइलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है। देखो पता चल जाएगा इनइलास्टिक कोलिजन में। देखो ये E की जो वैल्यू है, E की वैल्यू वो क्या होता है? 0 to 1 के बीच में, सभी ऑप्शन में 0 to 1 है, इनइलास्टिक कोलिजन है। चलो कैन वी यूज द शॉर्टकट? हम ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स। ये कब यूज कर सकते हो? इनइलास्टिक कोलिजन हो और आइडेंटिकल मास होना चाहिए। यहाँ पे तो मास डिफरेंट है m और 4m, तो यूज मत करना, आंसर नहीं आएगा। चलो तो कैसे करोगे? आसान है। चलो दो फॉर्मूला, दो कंजर्वेशन लगा दो। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल में देखो क्या है? स्पीड m, क्या है उसकी स्पीड? v, ये तो रेस्ट में है 0, ये आफ्टर द कोलिजन लाइटर ब्लॉक मींस m क्या आ गया? रेस्ट में, इसकी स्पीड m2, इसका मास क्या है m2 का? 4m, m2 v2। चलो तो m v, m2 का मास 4m, तो क्या आया? u1 है v है, देखो u1 क्या है? इनिशियल स्पीड v, तो एक रिलेशन मिला आपको v इज इक्वल टू 4v2। v क्या है? इनिशियल स्पीड ऑफ लाइटर ब्लॉक। अभी e की फॉर्मूला क्या थी? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। v2 है लाइटर ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन, लाइटर ब्लॉक रेस्ट में आ गया है, आफ्टर द कोलिजन लाइटर ब्लॉक रेस्ट में, v1 0, u1 क्या इन लोगों ने दिया था? v, u2 बिफोर द कोलिजन, ये जो 4m है वो रेस्ट में था, तो e इज इक्वल टू v2 बाई v। क्या है v की वैल्यू? v की वैल्यू है 4v2, v2 कैंसल, 1/4, 1/4 मीन्स 0.25। चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये 2010 AIPMT में था। अ बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स हेड ऑन। चलो ड्रॉ करो डायग्राम, रफ डायग्राम बिफोर द कोलिजन। चलो सपोज इसका मास m लेते हैं। बिफोर द कोलिजन, अ बॉल मूविंग विथ m1, बॉल मूविंग विथ अ वेलोसिटी, कितनी है वेलोसिटी इसकी? u1, u1 क्या दिया है आपको? 2 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स हेड ऑन विथ अनदर स्टेशनरी बॉल। चलो ये इसकी वेलोसिटी 0, क्योंकि ये क्या है? रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी 0। कोलाइड्स अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल द मास। चलो ये अच्छा है, इसका मास m, तो इसका क्या लेंगे? 2m, डबल द मास। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ E दिया है
देखो E की वैल्यू क्या है, बिटवीन 0 to 1, तो ये कौन सा कोलिजन हो गया, इनइलास्टिक कोलिजन. Then the velocity after the collision, suppose after the collision m1 की वेलोसिटी v1 है, m2 की वेलोसिटी v2 है, वही आपको फाइंड करनी है, v1 और v2. कैन वी यूज द शॉर्टकट हियर? नहीं, क्यों? मास आइडेंटिकल नहीं है. सब कब करेंगे शॉर्टकट यूज, कर आएगा स्टूडेंट, शॉर्टकट की बात भी आएगी, लेकिन यहाँ पे अभी हम शॉर्टकट नहीं कर सकते क्योंकि आइडेंटिकल मास नहीं है, m और 2m है. चलो क्या करोगे, दो इक्वेशन निकालो. एक कैसे निकालोगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और एक कैसे निकालोगे, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ E. निकालो दो इक्वेशन, ट्राई करो अपने आप, वीडियो पॉज करके ट्राई करो. एक कंजर्वेशन से लगा दो, एक कंजर्वेशन से मिलेगा. चलो क्या है, m1 u1, m2 u2, m1 v1, m2 v2. m1 का मास है m, उसकी वेलोसिटी ये u1 कितना दिया आपको, u1 2. चलो यहाँ पे 2 लगा दो. सेकेंड इनिशियल में जो m2 है वो रेस्ट में था, m1 है m, v1 फाइंड करना है, m2 क्या है 2m, v2 भी फाइंड करना है. चलो मिल गई एक इक्वेशन, m कैंसिल कर दो, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल्स टू 2. चलो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन कहां से ऑब्टेन करोगे, फ्रॉम द E. चलो E की वैल्यू दिया है, E की फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. क्या है E आपके पास, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5. v2 क्या है, v2 हमें फाइंड करना है, v1 भी फाइंड करना है. u1 है 2, u2 है 0. हो गया सेकेंड इक्वेशन, 0.5 इंटू 2 हो जाएगा 1. या सेकेंड इक्वेशन. चलो सॉल्व करो तो आपको क्या मिल जाएगा, v1 और v2. कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये v1 प्लस 2v2 इज इक्वल्स टू 1. इसको ऑर्डर चेंज करके लिखो, माइनस v1 प्लस ये फर्स्ट इक्वेशन, ये उसको ऑर्डर चेंज कर दिया. चलो v1 माइनस v1 कैंसल, v2 प्लस 2v2 प्लस v2 3v2 इज इक्वल टू 3, तो v2 आया 1. चलो v2 1 है, 1 तो बहुत है, अभी v1 फाइंड करना है, तो प्लेस कर दो, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 1. क्या आया, v1 आपका 1, तो v2 हो गया 0. v2 हो गया 0. चलो कौन सा ऑप्शन, ये रहा 0. सॉरी v2 की वैल्यू है 1. क्या थी इक्वेशन हमारी, v2 माइनस v1, v2 की वैल्यू है 1, तो v1 हो जाएगा 0. आंसर आएगा 0 एंड 1. चलो इजी है क्वेश्चन. दो इक्वेशन लगाने हैं, दो इक्वेशन फाइंड करने हैं, एक कंजर्वेशन से मिलेगा, एक ई से मिलेगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको अपने ट्राई करना होगा. सेम इक्वेशन है, बॉल इज मूविंग विद द वेलोसिटी 4, कोलाइड्स हेड ऑन विद अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल द मास. सिर्फ ई की वैल्यू चेंज है. प्रीवियस क्वेश्चन में ई क्या था, 0.5, यहाँ पे 0.2 है. चलो अपने आप ट्राई करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये ट्राई करो, होमवर्क है ये आपका. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉल्स ए एंड बी हैविंग मास 1 kg. चलो टू बॉल्स हैविंग मास 1 kg एंड 2 kg मूविंग विद द स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड. चलो बिफोर द कोलिजन रिस्पेक्टिव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. याद रखो कहां पे है, ऑपोजिट. चलो तो m1 का मास है 1 kg, इसकी स्पीड u1 क्या लेंगे आप, u1 21 मीटर पर सेकेंड. फिर ये हुआ m2, उसकी स्पीड है, लेकिन both are moving in opposite direction. तो u2 क्या है, u2 4, लेकिन हम क्या लेंगे, -4. क्यों -4, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. चलो इसका मास क्या है, सेकंड का 2 kg, फर्स्ट का 1 kg, सेकंड का 2 kg. चलो देन कोलाइड हेड ऑन आफ्टर कोलिजन. ये ए दिया है, ए लिखा है, ए मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड. चलो आफ्टर द कोलिजन ए मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन. चलो किसकी स्पीड दिया है आपको, आफ्टर द कोलिजन सिर्फ ए की स्पीड दिया है. आफ्टर द कोलिजन
चलो आफ्टर द कॉलिजन ए मूव्स विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। चलो ए की स्पीड दिया है आफ्टर द कॉलिजन, ए इज मूविंग विद द, ये जो फर्स्ट है ये ए है, सेकेंड है ये बी है। ए इज मूविंग, ए मूव्स विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन, मींस उसकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी। चलो तो आफ्टर द कॉलिजन स्पीड है तो हम इसको क्या लिखेंगे, v1। v1 क्या है, चलो v1 है 1 मीटर पर सेकेंड, v2 नहीं दिया है वो भी फाइंड करना होगा आपको। चलो तो m2 सपोज उसकी स्पीड है v2 लेकिन वो नहीं दिया है, वो फाइंड करना होगा। तो पहले आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे e फाइंड करना है। e की वैल्यू 0 to 1 में इन इलास्टिक कोलिजन। चलो तो v2 पहले फाइंड करना होगा तभी आपको e मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। पहले v2 फाइंड करो। यहाँ पर भी हम शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नॉन आइडेंटिकल मास है, 1 kg और 2 kg। आइडेंटिकल हो तो शॉर्टकट लगेगा। चलो वापस करो, ट्राई करो अपने आप। दो कंजर्वेशन लगाने हैं, दो फॉर्मूला बनाने, दो इक्वेशन लेने। फर्स्ट इक्वेशन कैसे मिलेगा, फ्रॉम द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। सेकंड कहां से मिलेगा, फ्रॉम ई। चलो क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल m1 u1 m2 u2 m1 v1 प्लस m2। m1 क्या है 1, u1 इज 21। चलो फिर m2 क्या है 2, u2 -4। क्यों -4, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन सेम ऑपोजिट डायरेक्शन। m1 1, आफ्टर द कोलिजन v1 क्या था 1, आफ्टर द कोलिजन m1 की स्पीड कितनी है 1 और m2 है 2, v2 फाइंड करना है। चलो क्या होगा 21 - 8 13, 13 - 1 12, तो v2 की क्या मिली स्पीड 6। v2 आपको प्लस मिला स्टूडेंट्स, v2 +6 मिला। इसका मीनिंग क्या हुआ, v2 की डायरेक्शन ये पहले थी उससे क्या हो गया, पहले ये u2 क्या था ऑपोजिट में -4, अभी वो प्लस हो गया, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस आया। चलो निकालो e, v2 मिल गया। क्या है e की फॉर्मूला, v2 - v1 u1 - u2। v2 क्या है, बहुत आसान है, v2 है 6, v2 है 6 आपका, और 6 माइनस v1 क्या है 1। चलो देन u2 u1 21 u2 -4, 5/25 1/5, 1/5 मीन्स आपका आंसर आएगा 0.2। चलो इजी क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन नेक्स्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A ball P collides with another identical, देखो स्टूडेंट्स आप जिसका वेट कर रहे थे वो आ गए, another identical ball Q। चलो before the collision ये है M, ये है बॉल P। अब बॉल P collides with another identical ball Q at rest। चलो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, आइडेंटिकल भी है, सेकेंड रेस्ट में भी है। चलो मन में लड्डू फूटा, चलो हो जाएगा, शॉर्टकट्स लग जाएगी। ये सपोज इसकी स्पीड u1 है, नहीं दिया है, इसको हम u ले लेते हैं, ठीक है। चलो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, आपको e फाइंड करना है। इन इलास्टिक कोलिजन है, 0 to 1 के बीच में वैल्यू है। कौन सा कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन। For what value of coefficient of restitution the velocity of ball Q become 2 times that of ball P after the collision। आफ्टर द कोलिजन क्या दिया है, सपोज ये जो P है उसकी वेलोसिटी v1 है, ये जो Q है उसकी वेलोसिटी v2 है। चलो ये Q है उसकी वेलोसिटी, लेकिन क्या दिया है आफ्टर द कोलिजन, for what value of E after the collision velocity of Q after the collision velocity of ball Q becomes 2 times that of P। चलो ये दिया है, ठीक है। चलो लगा सकते हैं हम शॉर्टकट, लगा सकते हैं सर, क्यों लगा सकते हैं, देखो सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आइडेंटिकल मास है, इन इलास्टिक कोलिजन है। कैसे पता चला इन इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू क्या है, ये ई क्या है 0 to 1, तो इन इलास्टिक कोलिजन है, आइडेंटिकल मास है, सेकेंड रेस्ट में। चलो तो लगा सकते हो शॉर्टकट, क्या था शॉर्टकट, v1 मींस ये 1 - e/2 u, ये u इनिशियल
लगा दो स्टूडेंट्स, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। बराबर। अगर सपोज आपको ये फॉर्मूला स्किप हो गया, भूल गए आप लोग, तो क्या करोगे, वापस हमने जो प्रीवियस मेथड किया, एक इक्वेशन ऑब्टेन करो कंजर्वेशन से, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से, पी आई इज इक्वल टू पी एफ से, और एक इक्वेशन ऑब्टेन करना होगा ई से। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा लेकिन ये इजी है। चलो वी क्यू, ये सेकंड की स्पीड क्या होती है, 1 प्लस ई बाई टू, फर्स्ट की स्पीड 1 माइनस ई बाई टू यू। चलो तो u हो जाएगा कैंसल, ये 2 भी हो जाएगा कैंसल, 2 से करो मल्टीप्लाई, 1 प्लस ई 2 माइनस 2e, तो 3 इक्वल टू 1, तो e इज इक्वल्स टू 1/3। चलो ये हो गया फाइनल आंसर, e इज इक्वल्स टू 1/3। चलो क्लियर स्टूडेंट्स। Now in the next lecture we discuss perfectly inelastic collision. Very important topic, perfectly inelastic collision. For more videos, please share and subscribe my YouTube channel. Thank you.